Hello dear students, today I am going to continue part 2, chapter number 9 of Elements of Accountancy, Standard 11 Commerce, session number 3rd of Accounts of Non-Trading Concerns. In last session, that is in first sessions, first and second, we discuss the meaning, introductory part, characteristics, total different type of the accounts that is related to the non-trading concerns, and then after in next session we discuss difference between trading and non-trading concern with the help of that some of the points. Also we discuss, or I started and completed the classification of incomes, that is capital and revenue. Also we discuss the difference between the particular capital income and revenue income. Now today the next point, that is under classification related to expenses. Here it is. So classification of expenses, under that 2 points are there, right? That is capital and revenue. But as per the particular syllabus, one extra, right, classification point related to expense is there, and that is the deferred revenue expense. Just like the discussion was there in the terminology chapter first, right? Deferred expenses, same as here also. So we can say the particular expenses are classified into 3 types: capital expense, revenue expense, and third one deferred revenue expense. Let's start with the capital. विदिन द पर्टिकुलर 1 ईयर जो एक्सपेंसेस होते हैं हमने उसको रेवेन्यू नाम दिया है. हमने इनकम भी उसकी डिस्कस की. कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है वो आपको मालूम है. फिर भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के हिसाब से फिर से एक बार देखते हैं कि मोर देन 1 ईयर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो. तो एक्सपेंस विच इज़ नॉट इनकर्ड रेगुलरली, जो भी एक्सपेंसेस रेगुलर नहीं होते एंड द बेनिफिट ऑफ विच इज़ अवेलेबल टू द कंसर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम विच फिक्स एसेट्स आर एक्वायर्ड बाय द कंसर्न, दैट इज़ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न. इट इज़ नोन एज कैपिटल एक्सपेंस. सो ये जो एक्सपेंसेस है वो हर साल नहीं होते. ये जो एक्सपेंसेस है जनरली वो रेगुलरली नहीं होते, और जो बेनिफिट है वो 1 साल के लिए नहीं. इट इज़ अवेलेबल फॉर द और द बेनिफिट्स यू विल अवेल थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, मोस्टली राइट, फ्रॉम विच फिक्स एसेट्स आर अक्वायर्ड बाय द कंसर्न. सो वी कैन से इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस. फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, बुक्स फॉर लाइब्रेरी. देखो ये सब आपके लिए कॉमन है. अब नया आया बुक्स फॉर लाइब्रेरी, बिकॉज वी आर इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स. Books for library, X-ray machines if the hospitals are there, sports equipment if the clubs are there, that is related to sports club, swimming pools, that is also related to the sports club. So all these things are, whatever the expenses are done behind this one, that capital expenses, that is for a longer time period. तो वो रेगुलरली नहीं होते ना, वन टाइम हुए वो 2, 3, 4, 5 साल तक चलेगी. तो विल गेट द बेनिफिट और यू विल अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस कंसर्न्स फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. दैट इज ऑफ टाइम फ्रॉम द फिक्स एसेट्स. तो ये फिक्स एसेट्स से क्रिएट होते हैं. कैपिटल एक्सपेंस इज डिस्क्लोज एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. अपार्ट फ्रॉम, याद रखना मोस्टली ये आगे भी हमारे बैलेंस शीट में आ गया है. सो कैपिटल एक्सपेंस क्या है? इट इज डिस्क्लोज टोटली एट द एसेट साइड. अपार्ट फ्रॉम द परचेज प्राइस ऑफ एसेट, its introduction expenses, stamp duties, that is stamp fees, and document expenses, also expense incurred to increase the efficiency of assets are also capital expense. So ये भी आपको मालूम है, when we are going to purchase or when we are purchasing the any type of the machinery or any type of the asset, whatever the expenses behind that one at the time of the purchase, that we are adding with the total amount of the one particular assets. You know that one, right? Like the list is here, okay, but you know installation expenses, some of the transportation expenses, already it is there, right, in our depreciation. And 2 more points are there, that is stamp duties, stamp fees, some of the document expenses, okay. And also if you want to increase the efficiency level of the machinery or efficiency level of the any asset, you have to you have to pay some of the expenses behind that one, and that is for a longer time period, not for the shorter time period. So it is considered as capital expense. So that are added to the cost of the respective assets, as you know. So यहाँ कुछ नया नहीं है. कैपिटल एक्सपेंस जो है टोटली कैपिटल एसेट्स जो उसको क्रिएट करते हैं उसके पीछे लगता है, राइट, बिहाइंड दैट वन. सो कैपिटल एक्सपेंस विद द एग्जांपल. नो नेक्स्ट वन, रेवेन्यू एक्सपेंस. You can get the benefit for 1 year. Also it is on regular basis. So expense which is incurred on regular basis to run a business or to run a routine activity of the concern, that is non-trading concerns, and the benefit of which is available to the concern for the respective year only is known as revenue expense. So keep in mind this type of the expenses are there quite different than the regular, but हाँ તમે કહી શકો છો કે throughout the year
તમે જેટલા પણ રૂટીન એક્ટિવિટી પાછળ એક્સપેન્સીસ કરો છો ઓલ આર કમિંગ અંડર ધ રેવન્યુ એક્સપેન્સીસ. ઓકે, સો ઇટ ઇઝ ઓન ધ રેગ્યુલર બેસિસ फॉर द रूटीन एक्टिविटी एंड द बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर ओनली. एक साल के लिए उसका बेनिफिट होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस. फॉर एग्जांपल डेली एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, सैलरीज, रेंट, टैक्सेस, पोस्टेज एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंस, स्टेशनरी प्रिंटिंग, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर. यहाँ तक सब कुछ सेम है, राइट. यहाँ से शुरू होता है सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स, राइट. दैट इज 15 days और वॉट एवर टाइम पीरियड इज दैट. असेट्स रिपेयरिंग एक्सपेंस, ये भी कॉमन है. डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, ये भी कॉमन है. ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये नया है. सो कीप इट बाय द न्यू थिंग्स, राइट, बिकॉज वी आर इन द पर्टिकुलर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स. तो हमारे लिए सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर देखो वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस है. ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस वो करवाना पड़ेगा, राइट. तो ये सब मिला के रेवेन्यू एक्सपेंस होता है. यू विल गेट द बेनिफिट विद इन द 1 year, you will get the benefit for respective year only. So revenue expense, dear students. Now let's move to the difference between these two, revenue expense and capital expense. So first of all capital and then after revenue. What is the meaning of both? Capital, so an expense which is not incurred regularly and the benefit of which is to the concern for a longer period of the time and through which the concern acquires fixed asset is the capital expense. तो यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ हमने आगे भी डिस्कस किया, इट इज़ नॉट फॉर द रेगुलर बेसिस, राइट. ये हर साल नहीं होता है, एक साल के ऊपर ये पर्टिकुलर एक्सपेंसेस होते हैं, राइट. एवरी ईयर एक्सपेंस हो तो फिर एवरी ईयर के लिए यूज़ करना हो तो फिर ये रेवेन्यू में चलाएगा, ऐसा है नहीं. और ऑल्सो फॉर द पर्टिकुलर कंसर्न फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एंड उससे हम क्या करेंगे, वी विल परचेज द और एक्वायर द फिक्स एसेट. Whereas the revenue expense to run a routine activity of the concern daily basis, expense which is incurred and benefit of which is available to the concern for the current year is the revenue expense. So ये भी दूसरी तीसरी बार आ गया यहाँ इस चैप्टर में. सेकंड बार में देख लिया कि फॉर अ रूटीन एक्टिविटी एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर द वन पर्टिकुलर ईयर, दैट ऑल आर एक्सपेंसेस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंसेस. नेक्स्ट वन, ऑब्जेक्टिव. The objective of the capital expense is either to acquire fixed assets and with their help to create facilities to generate income. So whenever this type of the capital expenses are there, the main objective, the main goal of this particular type of the capital expenses are to acquire the fixed assets, to get the fixed assets from the market, sometimes by cash, sometimes by the loans, whatever, right. आपकी सिचुएशन प्रमाणे તમે લઈ શકો છો, but કે acquire fixed asset and also their help to create facilities to generate income. So you can generate income through that particular type of the capital expense, other income. Main objective of revenue. The objective of the revenue expense is to run activities of the concerns. Whatever the particular non-trading concerns are there or non-trading concern is there, the activity must be run in a proper way through the particular revenue expenses, because throughout the year है इसीलिए. तीसरा, presentation in accounts. Capital expense is disclosed on the asset side of the business बैलेंस शीट, राइट. तो हम भी जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं, बिजनेस एंटरप्राइज की हो या फिर कोई कंपनी की हो या फिर सोल प्रोवाइडर, जो भी आप कहते हो, उसके कैपिटल एक्सपेंस कहाँ लिखा जाता है, बैलेंस शीट में, असेट साइड. whereas the revenue expense is disclosed on the debit side of the income expenditure account as per the our particular कैलकुलेशन. हम उसको इनकम एक्सपेंडिचर में रखेंगे. यहाँ पर कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है, यहाँ कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर अकाउंट नहीं बनता है, तो आपको उसको डालना पड़ेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. उसके बेस पर भी हम एक्सेस ऑफ द एक्सपेंसेस ओवर इनकम या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस देख सकेंगे. फोर्थ वन है बैलेंस. एवरी ईयर द बैलेंस ऑफ द कैपिटल एक्सपेंस इज कैरी फॉरवर्ड. उसको सीएफ करते हैं, हर साल वो आगे बढ़ता रहता है. रेवेन्यू एक्सपेंस आर ट्रांसफर टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है. तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में सब आपको मालूम है, वैसे ही यहाँ पर काम करना है. लेकिन इसका जो बैलेंस आएगा कैपिटल एक्सपेंसेस का, वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, क्योंकि वो तो लंबे समय के लिए हमें यूज़ करना है ना, नॉट फॉर अ 1 ईयर, इट इज़ फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस है वो 1 साल के लिए, तो इट इज ट्रांसफर टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट वन, उसके कई एग्जाम्पल्स हैं, इलिस्ट्रेशन देख लेते हैं. फिक्स एसेट्स, परचेस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर एंड देयर इंस्टॉलेशन एक्सपेंस एटसेट्रा. तो याद रखो, फर्नीचर या कोई भी एसेट आप परचेस करते हो, उसके जो भी एक्सपेंसेस है यहाँ उसकी पर्टिकुलर कैपिटल जो है उसमें, या उसका जो भी अमाउंट है उसमें ऐड हो जाएंगे. वो कैपिटल एक्सपेंस है, लंबे समय तक इसका यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक सैलरी, पोस्टेज, स्टेशनरी हमने देख लिया, राइट. फॉर एग्जांपल नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है तो सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, राइट, ग्राउंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये सब इंक्लूड हो जाएगा.
तो डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंस बिटवीन टू. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस अंडर दैट वन. थर्ड पॉइंट, थर्ड एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस, एंड थर्ड दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. Here it is. The benefit of revenue expense is for that respective year in which it is paid. जब उसको पे किया जाता है उसी साल के लिए वो चलता है. बट देर आर सर्टेन एक्सपेंसेस फॉर विच द बेनिफिट्स अवेलेबल इन सर्टेन सब्सिक्वेंट ईयर्स. तो यू विल गेट द बेनिफिट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ द एक्सपेंसेस इन द नेक्स्ट सम ऑफ द ईयर सब्सिक्वेंट ईयर्स, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, along with the year in which they are paid. So not only the next sub time periods but along with the current year and then after some of the other years. ओके, सो ये एक्सपेंसेस ऐसे है जो आप तो पेड तो कर देते हो लेकिन उसका बेनिफिट्स आपको फ्यूचर में भी मिलता रहेगा. राइट, सो द इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑफ दिस एक्सपेंसेस एज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ दैट ईयर इन विच दे आर इनकर्ड, दे आर अलोकेटेड ओवर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द बेनिफिट विल बी अवेलेबल और allocated to the predetermined number of years. यानी यहाँ पर एक सिंपल सा चीज़ समझ लो कि मोस्टली ये टाइप की डिफर्ड जो एक्सपेंसेस है वो बेनिफिट्स आपको 1 साल से ज़्यादा के लिए देंगे. तो यू कैन राइट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर बेनिफिट अवेलेबल फॉर द फ्यूचर. 5 साल के लिए उसका जो पर्टिकुलर है हमें बेनिफिट मिलने वाला है तो 20,000 उसकी टोटल अमाउंट है. 20,000 डिवाइड बाय 5 तो उसको 5 साल में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 4-4 हज़ार में. 5 हो जाए 20. सो आप समझते हो 20,000 बाई 5 तो 4-4 हज़ार, जैसे हम डेप्रिशिएशन ढूंढते थे वैसे ही. ओके, सो हम कह सकते हैं कि इसको आप रिटर्न ऑफ कर सकते हो नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से और उसको जो भी थ्रू आउट द ईयर इनकर्ड होता है एक्सपेंसेस, राइट, उसको ध्यान पर रखना पड़ेगा. सो दिस मीन्स दे आर रिटर्न ऑफ प्रोपोर्शनेटली एंड दिस एक्सपेंस इज नोन एज स्प्रेड एक्सपेंस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. तो पहला नाम का तो मालूम है वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, ऑलरेडी हम देख भी चुके हैं फिक्सिशियस एसेट्स के तौर पर, राइट. और यहाँ उसका दूसरा नाम है स्प्रेड एक्सपेंसेस बिकॉज इट इज स्प्रेडेड ओवर 2, 3, 4, 5 ईयर्स वॉट एवर द टाइम पीरियड यू विल डिसाइड. तो ये जो एक्सपेंसेस है वो हमें लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलते हैं. ये जो एक्सपेंसेस है हमें 1 साल के भी लिए नहीं मिलते. इसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा करना है. सो द अमाउंट रिटर्न ऑफ इज डिस्क्लोज एट द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिखते थे यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में लिखना है. जो अमाउंट रिटर्न ऑफ करते हैं यानी हमारे केस में 4,000 मैंने एग्जाम्पल दिया ना 20,000 डिवाइड बाई 5 ईयर्स में तो 4,000 एवरी ईयर हमको डिडक्ट करना है, रिटर्न ऑफ करना है. तो रिटर्न अमाउंट डिस्क्लोज करिए हम डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर. ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर. The portion of this expense which is not written off is disclosed on the asset side at the end of the balance sheet. यानी ईयर खत्म होगा तो जितना भी हमने पोर्शन डिडक्ट नहीं किया है, राइट, दैट इज़ नॉट रिटर्न ऑफ, वो लिखा जाएगा एसेट साइड पर क्योंकि हमारे लिए वो भी एसेट ही है. सो वी कैन से इफ 20,000 इस था तो फर्स्ट ईयर का 4,000 निकाल के 16,000 इस साल का रहेगा, नेक्स्ट ईयर 12 रहेगा, उसके बाद 8 रहेगा, उसके बाद 4 रहेगा, उसके बाद नील हो जाएगा 5 साल का, है. तो हमें जो डिस्क्लोज करनी है अमाउंट असेट्स में वो आएगी हमारे केस में 16,000. फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग कलर वर्क, ग्राउंड लेवलिंग एक्सपेंसेस, ये कलर वर्क 1 साल के लिए है ना, यू विल गेट द बेनिफिट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड. ग्राउंड लेवलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं 20,000 25,000 वो 1 साल में होते हैं, राइट, लेकिन उसका जो बेनिफिट है आपको 3 साल 4 साल तक मिलेंगे. तो उसको हम डिवाइड करके रख सकते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस कंप्लीटेड, दैट इज कैपिटल एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंस एंड थर्ड वन दैट इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस. नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट. Now let's move to other point, that is some of the special issues associated with accounts of non-trading concerns. Sometimes it happens because of the non-trading concerns are quite different, that is single entries are there, it is different than a double entry. So some of the special issues will be arise. Let's start with the first one, capital fund or permanent fund. Whatever the capital is there, it is in the डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम नोन एज कैपिटल. और यहाँ सेम है ना, उसको भी नाम हमने दिया है कैपिटल, लेकिन यहाँ एक सिंपल सा वर्ड हमने ऐड किया है कैपिटल के साथ फंड और परमानेंट फंड. सो इश्यू क्या है? सो कैपिटल इनकम एक्सेप्ट स्पेशल फंड रिसीव्ड और इनकम कैपिटलाइज बाय द कंसर्न आर डिस्क्लोज अंडर दिस हेड. तो यू कैन यूटिलाइज द मनी विच यू रिसीव्ड एज अ स्पेशल फंड और इनकम you capitalize for the time period. It means they are added to the capital fund. So whatever the money you will receive in the sense of the special fund or whatever the money you mostly capitalize throughout the year, it is added to the capital fund. Total capital in short. So the excess of income over expenditure of income expenditure account is added. सीधी लैंग्वेज में बोले तो डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल में ऐड होता है. लाइक दैट हियर ऑल्सो
राइट, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, उसमें ये ऐड होगा। और उससे उल्टा कि अगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर राइट ओवर इनकम इज देयर सो इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल फंड, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे। सिंपल। सो लॉस होता है तो हम डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी लॉस आता है वो कैपिटल में से। तो सेम हियर, यहाँ याद रखना है आपको प्रॉफिट लॉस नहीं है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। So sometimes instead of adding excess of income over expenditure to the capital fund and deducting excess of expenditure over income from the capital fund, it is shown separately in the liability side of the particular balance sheet. तो you can say that जो भी हम डिडक्ट करते हैं वो डिडक्ट ना करें और जो भी हम ऐड करते हैं वो ऐड ना करें, लेकिन रिस्पेक्टिवली जो है उसको उसकी ओरिजिनल साइड पर लिख दे। तो फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है कि इंस्टेड ऑफ एडिंग एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर राइट कैपिटल फंड में हम ऐड करते हैं और दूसरा जो माइनस करते हैं वो है पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, तो उसको कैपिटल फंड में प्लस माइनस ना करो, लायबिलिटी साइड लिख दे तो चले। तो यस इट इज़ सिंपल थिंग, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर पैटर्न टू। So the excess of income of the respective year is added to it and excess of expenditure is deducted from it. So excess of income is also known as surplus and excess of expense also known as deficit. तो जब डेफिसिट होता है तो हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं, जब सरप्लस होता है तो हम उसको एसेट साइड लिखते हैं, हो सकता है ना। सो उसको प्लस माइनस ना करो, उसकी जगह राइट उसको लायबिलिटी और एसेट की तरह लिख सको, हाँ लिख सकते हो। सो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहा जाता है सरप्लस और एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम कहा जाता है डेफिसिट। याद रखना सरप्लस और डेफिसिट डू नॉट यूज और डोंट यूज द प्रॉफिट लॉस बिकॉज इट इज़ नॉट हियर। ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम इश्यू है। सेकंड वन है सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस। जनरली टू कंटिन्यू द मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स द कंसर्न रेगुलरली कलेक्ट सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस फ्रॉम द मेंबर्स, मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस, राइट। मोस्टली ईयरली बेसिस पर आपको पे करने होते हैं इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेंबर और इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू द मेंबरशिप। तो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स के लिए मेन इनकम तो यही है ना, उनका बाइंग सेलिंग थोड़ी ना है। तो दे विल परचेज द गुड्स एंड सेल एट द हायर प्राइसेस दैट द परचेज और ऑन द प्रॉफिट नो। सो उनका मेन पर्टिकुलर जो भी मेन सोर्स ऑफ इनकम है राइट फॉर द नॉन ट्रेडिंग पर्सन इज द सब्सक्रिप्शन और मेंबरशिप फीस एंड दिस इनकम इज ट्रीटेड एज द रेवेन्यू इनकम बिकॉज वो हर साल मिलती है एंड डिस्क्लोज ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो एज अ पार्ट ऑफ इनकम आपको ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड बतानी है। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड बताते हैं, यू नो दैट वन राइट, दैट इज पार्ट ऑफ द इनकम। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन इनकम है, मेन सोर्स ऑफ द इनकम है, तो इसको हम लिखेंगे इनकम पर, इनकम साइड पर। थर्ड वन एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। ये क्या है? टू बी अ मेंबर ऑफ कंसर्न न्यू मेंबर्स हैव टू पे एडमिशन फीस और एंट्रेंस फीस। अगर आपको एक ट्रस्ट में एंटर होना है, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर राइट जो भी फर्म चल रहा है उसका प्रॉफिट मेकिंग यूज़ नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग काम नहीं है और वो सिर्फ ट्रस्ट चलाने के लिए कुछ सर्विस देना चाहता है, तो न्यू एडमिशन्स होते हैं, न्यू मेंबरशिप आती है राइट। इफ़ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ रोटरी क्लब, इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ लायंस क्लब राइट, सो यू हैव टू पे। यू सी ये सब्सक्रिप्शन है पूरे साल का। अगर आपको न्यू एडमिशन देना है तो आपको फी पे करना पड़ेगा, एंट्रेंस फीस उसको हम बोल सकते हैं। तो एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंसर्न नॉन ट्रेडिंग कंसर्न कॉन्स्टिट्यूशन के मुजब एंट्रेंस फीस इज स्टेटेड एज कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम। तो यहाँ पर ये दोनों हैं। ऊपर हमने देखा कि सब्सक्रिप्शन है दैट इज स्टेटेड एज रेवेन्यू इनकम, वो हर साल मिलेगी, लेकिन ये एडमिशन फी एंट्रेंस फीस है उसको दोनों बोलते हैं, या तो कैपिटल इनकम भी बोलते हैं रेवेन्यू इनकम भी बोलते हैं। समटाइम्स एज पर द इंस्ट्रक्शन सम पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द एंट्रेंस फीस इज कंसिडर्ड एज द कैपिटल इनकम एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ अमाउंट इज कंसिडर्ड एज रेवेन्यू इनकम। कई बार एज पर द इंस्ट्रक्शंस वॉट एवर द इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू यू इन द एग्जाम्पल यू हैव टू फॉलो दैट वन बिकॉज नॉट 100% इज कंसिडर्ड एज कैपिटल इनकम, नॉट 100% कंसिडर्ड एज पर्टिकुलर रेवेन्यू इनकम। उसको 70-30 50-50 जो भी आपको इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। समटाइम हैपन्स के उसमें कुछ ऐड भी होगा। So when no instruction is given, the entrant fee income is treated as revenue income, है वो भी एक साल की गिन के हमें पर्टिकुलर रेवेन्यू इनकम जनरेट करना है राइट। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको फॉलो करो। थर्ड इश्यू completed. Fourth one, life membership fees. Many members acquire life membership by paying the full amount predetermined by the concern.
इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेमेंट एवरी ईयर टू द कंसर्न, तो हमने ऊपर देखा सब्सक्रिप्शन दैट इज रेवेन्यू इनकम, राइट, वो 1 साल के लिए है, एंट्रेंस फी 1 साल के लिए, अगर 1 साल से ज़्यादा भी हो तो भी आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट, सब्सक्रिप्शन के तौर पर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सम ऑफ द पीपल आर पेइंग द लाइफ मेंबरशिप फीस, राइट, नॉट पेइंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग द पेमेंट एवरी ईयर, हर साल की झंझट से मुक्ति, ऐसे समझकर वो लाइफ मेंबरशिप ले लेते हैं। सो व्हेन नो इंस्ट्रक्शन इज गिवन द एंट्रेंस फी इज कंसीडर्ड, राइट, एज अ कैपिटल इनकम एंड एडेड टू द कैपिटल फंड द बैलेंस शीट। तो ये इसको ज्वाइन किया हुआ यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप के साथ कि अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है रिलेटेड टू दी एंट्रेंस फी, रिलेटेड टू लाइफ मेंबरशिप फी, ओके, एज कैपिटल इनकम, तो आपको क्या करना है, इट शुड बी एडेड और मस्ट बी एडेड इन द कैपिटल फंड द बैलेंस शीट, राइट, वो याद रखना क्योंकि ये परमानेंट है, वो परमानेंट कैपिटल जैसा होगा, दैट्स व्हाई वी कैन और वी विल ऐड दिस अमाउंट इन द टोटल कैपिटल फंड लाइफ मेंबरशिप है इसीलिए। डोनेशन, जनरली डोनेशन इनकम इज ट्रीटेड एज द कैपिटल इनकम एंड एडेड टू द कैपिटल फंड, तो लाइफ टाइम के लिए भी हो सकता है। इफ़ अ कंसर्न रिसीव्स डोनेशन इन द रेगुलर फॉर्म, इट इज़ डिस्क्लोज एज रेवेन्यू इनकम एट द इनकम साइड ऑफ द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। वन टाइम आपको डोनेशन मिला है तो इट इज़ ट्रीटेड एज द कैपिटल, इट विल बी एडेड टू द कैपिटल। लेकिन ये रेगुलर फॉर्म में, रेगुलर आपको मिल रहा है, हर साल किसी भी एक पार्टी से ये पेमेंट मिल रहा है, तो इट इज़ डिस्क्लोज एज रेवेन्यू इनकम, याद रखना, राइट। तो लाइफ मेंबरशिप दैट इज़ कैपिटल इनकम, डोनेशन दैट इज़ रेवेन्यू इनकम, एंट्रेंस फीस उसको हम रेवेन्यू इनकम कहते हैं, वैसे वो तो दोनों पार्ट में आते हैं, कैपिटल रेवेन्यू, राइट, और सब्सक्रिप्शन फीस वो सिर्फ रेवेन्यू। So donation में when a concern receives donation frequently and no instruction is given for the donation, in this case donation is added to the capital fund in the balance sheet। वैसे तो हम इसको जनरली डिस्क्लोज करते हैं एज रेवेन्यू इनकम, बट नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू इनकम यानी कि डोनेशन के बारे में नहीं दी गई है, राइट। सो डोनेशन इज एडेड टू द कैपिटल फंड, वन टाइम समझकर उसको, लाइफ टाइम समझकर उसको ऐड कर देते हैं हमारे फंड में, कैपिटल में। 6(1) funds for specific purpose, donation or charity received for a specific purpose is used for that specific purpose only, like our reserves। तो जिस काम के लिए आपको ये पर्टिकुलर फंड मिला है उसी काम के लिए यूज़ होना चाहिए, यानी डोनेशन। So this kind of amount of donation is not added to the capital fund in the balance sheet but disclosed as a specific fund। इसको हम कैपिटल में ऐड नहीं करेंगे, हालांकि वो फंड ही है, राइट, एक टाइप का डोनेशन ही है, लेकिन वो स्पेशल चीज़ के लिए, दैट्स वाई वी विल नॉट ऐड टू द कैपिटल फंड, वी विल गिव और वी विल डिस्क्लोज दिस अमाउंट सेपरेटली एज अ स्पेसिफिक फंड। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन फंड, प्राइज फंड, बिल्डिंग फंड, ऑल दिस फंड। तो कई बार ऐसा होता है कि जब भी कोई फंक्शन होता है, राइट, तो उसके लिए कई फंड हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं, राइट, एज अ स्टेट गवर्नमेंट, राइट, एज अ NGO। तो यहाँ पर एक फ़ंड है प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन फंड, कई बार प्राइज फंड स्पेशली कोई प्रोग्राम होता है उसके लिए मिलते हैं, राइट, और बिल्डिंग फंड होता है। तो ये सब के फंड जो है वो स्पेसिफिक फंड है, उसको नाम अलग से बताना पड़ेगा हमें बैलेंस शीट में। उसके बाद एज एंड व्हेन एनी एक्सपेंस इज इनकर्ड इन दिस रिगार्ड, उसके पीछे जो एक्सपेंस होता है ना, राइट, इट इज़ नॉट डिस्क्लोज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बट इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट और द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक्सपेंस समझकर उसको इनकम एक्सपेंडिचर में लिख देते हो, लेकिन नहीं, डू नॉट राइट डाउन द एक्सपेंसेस बिहाइंड दिस टाइप ऑफ द स्पेसिफिक पर्पजेस। अगर प्रेसिडेंट फैसिलिटेशन के पीछे कोई भी एक्सपेंस हुआ है तो उसमें से ही डिडक्ट होगा, राइट। डू नॉट राइट डाउन दैट इन द पर्टिकुलर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में उसको लिखने की जरूरत नहीं, हमारी लैंग्वेज में डबल एंट्री के, है। तो उसको क्या करेंगे, सिंपल उसको लायबिलिटी साइड पर जो भी बैलेंस शीट है उसमें से उसको माइनस कर देंगे, अगर ऐसा करना हो तो, राइट, डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट ऑफ द लायबिलिटी साइड। फॉर एग्जांपल एक प्राइस फंड इज रिसीव्ड, हमें यहाँ एक अमाउंट इन्फॉर्मेशन दिया है प्राइस करना, तो वो रिसीव किया हमने, राइट, कि हम एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं और अब हम बिजनेस चला रहे हैं और हमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैसे मिले कि भाई आपके यहाँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, चलो समझ लो हम स्कूल को साइड पर रखते थे, हम एक ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, 100 से ज़्यादा काम करते हैं, उनको कहा जाता है कि आपके बच्चे पढ़ते उनका फर्स्ट रैंक है, उसकी हमको रिसिप्ट दो, वी विल पे द प्राइस, वी विल गिव द प्राइस, राइट। सो इफ द प्राइस फंड इज रिसीव, कोई पार्टी पैसा दे रही है, देन प्राइस एक्सपेंस इज डिस्क्लोज बाय द डिडक्टिंग इट फ्रॉम द प्राइस फंड ऑन द लायबिलिटी साइड्स द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में प्राइस फंड रखो,
राइट, अंडर द पर्टिकुलर हेडिंग प्राइस फंड माइनस उसके पीछे जो भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि प्राइस जो आप डिस्ट्रीब्यूट करें और उसके लिए कोई भी एक्सपेंस तो करेंगे ना, राइट। सर्टिफिकेट छपवाएंगे, उसके मेडल देंगे, कुछ चांदी का देंगे, कुछ सिल्वर का सिल्वर का या गोल्ड का वॉटेवर, सो उसके पीछे पैसा लगेगा, वो यहाँ से डिडक्ट होगा। सो द अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वेस्टेड इन सर्टेन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एडेड टू द रिस्पेक्टिव फंड। जैसे उसके पीछे जो भी खर्चा होता है हम माइनस करते हैं, वैसे भी उसके पीछे कोई भी एक्सपेंस हो माइनस करने के बाद अगर इसके पीछे कोई इनकम भी है तो उसको ऐड कर देंगे। सो इफ द अमाउंट ऑफ फंड इज इन्वेस्टेड इन सर्टेन टाइप ऑफ द सिक्योरिटीज यू विल गेट द बेनिफिट। अगर इसको आपने कहीं और जगह पर इन्वेस्ट किया है, वॉट एवर द फंड स्पेसिफिक पर्पज यू रिसीव, राइट, उसको आपने इन्वेस्ट करके रखा तो यू विल गेट द इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट उसी में प्लस होता है। कीप इन माइंड दैट वन, राइट। सो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इज एडेड टू दैट रिस्पेक्टिव फंड, तो उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी। सो इफ द एक्सपेंस इनकर इज मोर देन द स्पेसिफिक फंड का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस एंड डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि माइनस में आंसर नहीं आएगा, कई बार ऐसा होता है कि स्पेसिफिक पर्पज होता है उससे ज़्यादा उसका खर्च हो जाता है, राइट, तो उसको डोंट वरी, उसको हमें लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस फॉर द स्पेसिफिक पर्पज, जो भी नाम है, राइट। प्राइस फंड के लिए एक्सपेंसेस हुए तो एक्सपेंसेस फॉर द प्राइस फंड, राइट, आप लिख सकते हो, लेकिन ये कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा पॉइंट आ सकता है, राइट, कि ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंस, तो वो साल का एक एक्सपेंस करके उसको एंट्री देने की। नेक्स्ट वन लीगेसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीगेसी। When individuals give their own assets at legacy through will यानी आपका वसीयतनामा, इन दिस केस रिस्पेक्टिव इनकम इज एडेड टू द कैपिटल फंड एज कैपिटल इनकम। तो यहाँ पर याद रखो कि इंडिविजुअल्स अपने खुद की एसेट्स लीगेसी के तौर पर वारसा जिन्हें क्या है वारसो, राइट, थ्रू विल, एक पर्टिकुलर विल के जरिए कोई भी केस से लेकर हम देखो तो इंडिविजुअल अपनी एसेट्स देते हैं, सो रिस्पेक्टिव इनकम उसकी होती है वो ऐड होती है कैपिटल फंड में एज कैपिटल इनकम। ये लंबा टाइम के लिए है, ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं है। एंड लास्ट वन लॉकर्स रेंट, क्लब प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लॉकर्स टू द मेंबर्स टू कीप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, पेयर ऑफ क्लोथ्स और एनी अदर बिलोंगिंग्स इन द ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड सेफली। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर जगह पर जाते हो, राइट, वहाँ आपको एक स्पेस दिया जाता है उसको लॉक के साथ, राइट, वो जनरली होता है स्पोर्ट्स क्लब, जहाँ आप आपकी कुछ चीज़ें रख सको, आपके इक्विपमेंट्स रख सको, राइट, आपके कपड़े दो अगर पैर में लाए हो एक्स्ट्रा तो वो रख सको, राइट, और बिलोंगिंग्स है आपके जो भी है, मोबाइल फ़ोन वगैरह, वॉट एवर यू आर कीपिंग विथ यू और वॉट एवर विथ दैट टाइम विथ यू, राइट, वो एक ऑर्गेनाइजेशन और सेफ्टी मैनर में यहाँ दिया हो। तो मेंबर्स कीप देयर बिलोंगिंग्स इन दिस लॉकर्स एंड टू प्रोवाइड दिस सर्विस club collects rent from the members and which is known as lockers rent. So what is the meaning of locker rents? When the club provides and collects, first of all provides some of the space, right, to that members, and then after club collects rent from the members, it is known as lockers rent. And lockers rent is revenue income for the concern, वो आपको मालूम पड़ता है। So simply वो एक साल के लिए होता है, तो उसको हम यहाँ लॉकर्स रेंट को रेवेन्यू इनकम में डालते हैं। So this is the special information related to the non-trading concerns. After this one, I will start and give the information in the next session that is related to the illustration. Right? फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स एंड एक्सपेंसेस, वो कौन कौन से हेड है, राइट, यहाँ पर टोटल आप देखने जाओ, राइट, सो 50 ऑफ अलग अलग 50 या 55 अलग अलग प्रकार के इनकम एंड एक्सपेंसेस है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इनकम एक्सपेंसेस कौन से हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करते रहना, ये नाम याद रह जाएंगे। जैसे आपको एसेट्स लायबिलिटी के सब नाम याद है वैसे ही। सो आई विल स्टार्ट द इलस्ट्रेशन एंड बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।